Good morning, student. This is KK Bhatt here. The students, today I am just going to teach you the poem of class 9 behind on killing a tree. The students, in the previous video, I have explained how the poet gave a taunt toward the societies who just busy to destroy our forest. The students, you know that forest is very essential for us because it gives a complete, it gives completely very important things which you call oxygen. The students, you know that without oxygen, none can survive their life. To save tree, it is our moral duty anyhow to save the tree. If you can't careful to save our tree, it may be in future very dangerous. We are now you can say we are all suffering from pollution problem. Only tree is helpful to solve this problem. If you grow a lot of tree, it may be it may be the atmosphere neat and clean. Dear students, there is no need to tell you what is the importance of trees because everyone understands well the importance of tree. If you can't understand, so I think what is important of trees or oxygen, you can see just before a few months ago when COVID attacked, just creating a horrible condition. People die because of oxygen. There is lack of oxygen. And for that oxygen, people just run here and there to find out those peculiar objects. And finally, in the lack of oxygen, people died. You can imagine that here in our nature. The nature just provide us freely. The nature just provide us freely without any cost. But we people, being merciless, being selfish, and our own benefits, we just ready to destroy our trees mercilessly. The poet here, Gish Patel, just uh, taunt us uh, on tree cutter. People, for their own benefits, unknowingly, just busy to destroy the trees. That is not good for the societies, always as for the human being. Dear students, here poet says that trees did not want to destroy easily. So when a woodcutter just cut a tree, and if he did not root it out, मतलब अगर उस जड़ सहित उसको उखाड़ करके बाहर न फेंक दे, तो आई होप ट्री नेवर लॉस्ट हिज ओरिजिन. आप देख सकते हो कि जो ट्री है वो अपनी ओरिजिन को लॉस नहीं करता. आप देख सकते हो अगर किसी पेड़ को आप काट देते हो तो अगर तना बच जाती है, तना के किनारे किनारे फिर से नए नए जो होते हैं वो पत्ते, नए टहनियाँ, नए पत्ते निकल जाते हैं. अगर उनको डिस्ट्रॉय न किया जाए तो वो पुनः एक पेड़ के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेंगे. और पोएट ये कह रहा है कि मतलब वी आर टू क्रूअल that we destroy the tree completely. We destroy the tree completely. We just root out from the earth. मतलब उसको हम क्या करते हैं, सोर्स से उसको उखाड़ के फेंक देते हैं. देन आफ्टर द ट्रीज आल्सो डिड नॉट वांट टू डाई. इट्स टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू डाई to wear the sun and airs. Slowly, slowly the trees just
गेट्स इज डेथ। तो कहने का मतलब धीरे 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 जो पेड़ होता है वो मृत्यु की तरफ जाता है। बट अगेन द पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट ईजी टू बिल्ड अ ट्रेस। एक पेड़ को तैयार करना ऐसा आसान नहीं होता है। द ट्रेस बिकम मच स्ट्रांग, वी कांट हार्म विथ नाइफ और अदर स्मॉल weapons. We had to use axe. We have to use axe and had to bang, blow over the trees. Then after the trees just cut down. Dear students, so in this way, Giri Patel just warned us and also alert us to save the tree. If you can't ready to save the trees, it may be it is dangerous for our future. It may be that we can't live a peaceful life. It may be that we are destroyed because of the lack of oxygen. Now, dear students, you can see here that it just I am going to teach you the poem. See here the first stanza of this poem. It takes much time to kill a tree. The first line. Poet says that trees takes a lot of time to kill. How? Not a simple knife, simple job of a knife. We can't cut a tree with the help of knife because it's so strong. It's so strong and it not easily cut down. It has why the next line the poet says that why it is so strong because it has grown slowly consuming the earth. You know well that every tree just they can make their food with the help of soils and manure. So trees just grown up slowly, slowly, slowly to absorb the soil, the sun, the air, and manure. In this way, the growth of trees is not easily being strong. It takes a lot of time to become strong. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust. Its crust, upper layer of the trees, जिसको आप कहते हो क्या कहते हो जिसको आप वो बोलते हो चुईनी बोलते हो गाँव में चुईनी यानी अपर लेयर ऑफ द ट्री अपर लेयर ऑफ द बो और ट्री। तो फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट absorbing air of the sun. It means it takes a lot of time to become big tree. It's absorb a lot of sunlight, air, water. Then after it's become strong and out of its leprous it means discolored bark. डिस्कलर बार्क मतलब आप देखते हो कि परत जो तना होती है वो डिस्कलर होती है, बहुत शाइनिंग नहीं होती है। तो आउट ऑफ इट डिस्कलर स्प्राउटिंग लिव्स और उस जो डिस्कलर जो ब्रांचेस हैं जो भद्दी ब्रांचेस देखती हैं उसमें उस ब्रांचों से क्या करते हैं उससे पत्ते निकालती है। मतलब यू नो वेल दैट लिव्स हेल्प्स फॉर व्हाट पर्पस लिव्स हेल्प trees to make food. That is why to prepare its food, the trees just create leaves around them. And now see here the so hack the and choke. Here the meaning hack. It means a cut roughly by striking heavy blows. It means we need a heavy axe. हमको एक भारी भरकम कुल्हाड़ी चाहिए. And choke. And we have to blow hardly. Again and again and again to cut a tree, then it may be the tree cut down. It is not easy to cut a tree easily. We have to use a heavy axe as well. We have to cut it, but this alone would not do it. Not so much pain will do it. कह रहा है लेकिन कह रहा है पोएट यहाँ देखिए यहाँ पे टैंट है उनके लिए जो पेड़ को काटते हैं नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। कहता है कि बट दिस एलोन वुडंट डू, इस काम को कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, अकेले आप इतना इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नॉट सो मच पेन विल डू इट, आप इस तरह से पेड़ पौधों को अत्यधिक दर्द नहीं दे सकते।
आप चाहते हो पेड़ को नष्ट करना, तो इससे पेड़ नष्ट होने वाले नहीं है। सेइंग ऑफ सेंस, अगर आप पेड़ को काट देते हो, ठीक है, तो पेड़ को अगर काट करके आप छोड़ देते हो, फिर आप देखोगे पेड़ जो घाव बनते हैं पेड़ के, वो अपने आप भर जाते हैं, ठीक है, और उसके अगल बगल से क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस निकल आते हैं, और फिर अपना पेड़ जो अपने ग्रोथ को फिर कंटिन्यू करता है। तो वही पोएट कह रहा है कि एक टांट है, एक व्यंग है उनके लिए जो पेड़ को कट करते हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो वही कह रहा है कि सो हैक एंड चोक बट इट्स दिस एडोल नॉट सो मच पेन विल डू इट। आप इसको बहुत अधिक दर्द नहीं दे सकते, यानी आपके इस दर्द से वो आहत होने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क, यानी कटने के कारण जो उसके शरीर से खून निकलता है, जो ब्लड निकलता है, ब्लड का मतलब क्या है, आप देखते हो जब पेड़ आप काटते हो तो पेड़ में क्या होते हैं, ये गोंद टाइप चीज़ें होती है, चिपकती है, तो उसका वही है, वही उसको बिल्डअप करता है, वही उसको भोजन प्रदान करता है, वही उसके बॉडी को मेंटेन करने का है। तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ये जो घाव आप दे रहे हो, जो ब्लड निकल रहे हैं, उसको अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत जल्दी उस घाव हिल कर देगी, मतलब उसको वो आंटमेंट का काम करके पुनः उस घाव को क्या करेगी, भर देगी। यानी पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हियर जस्ट इनडायरेक्टली कमेंट एंड टॉन्ट ओवर दोज पीपल हु जस्ट इन्वॉल्व टू कट ए ट्री। ही सेड दैट इफ यू कंटिन्यूअली कट ए ट्री, इफ़ यू वांट टू हार्म दैट इज इट इज़ नॉट अ इजी जॉब, ये आसान काम नहीं है। आप पेड़ को आसानी से काट नहीं सकते, आप काटते हो, उसको दर्द देते हो, तो वो दर्द उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप दर्द उसको छोड़ दो तो पुनः अपने रूप में आ जाएगा। और जो ब्लीडिंग देते हो, जो खून बहाते हो आप उसके शरीर से, वो खून उसके घाव को पुनः क्या करेगा, भर देगा। अगर आप उसको बिल्कुल रूट आउट मत करो, ज़मीन से उखाड़ करके फेंको ना। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, कैसे भर देगा? अब पोएट ये बता रहा है कि जैसे आप किसी पेड़ को काट देते हो, राइट, काट करके आप पेड़ को छोड़ देते हो, फिर पेड़ क्या करता है, आप देखोगे उसके जो बेस होता है पेड़ का, उसके चारों तरफ अगेन जो है बहुत सारी टहनियाँ जो होती हैं वो निकल जाती है। देयर आर मेनी स्मॉल ब्रांचेस, ट्विग जस्ट केम आउट from the bottom of the earth and again it's tried to get its old position, पुनः अपने स्थान को प्राप्त करना चाहता है। if you do not destroy it, it's just growing again and again and become again at strong trees as it's remain in the past। तो कहने का मतलब है and from the close to the ground will rise curled green twig, यानी many curled twig जो वहाँ पे उग जाती हैं, miniature bough जिसमें अनेक छोटे ब्रांचेस निकल आती हैं, विच इज अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन द फॉर्मर साइज। अगर आप उसको अनचेक ना करो, अगर उसको आप नुकसान न पहुंचाओ, तो वो पेड़ जो ब्रांचेस हैं, जो स्मॉल ब्रांचेस हैं, वो पुनः एक पेड़ का रूप धारण कर लेंगे। स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व यू कैन सी ट्रीज ऑफ यूकलिप्टस। अगर यूकलिप्टस आपके गाँव में आप देख सकते हो, अगर उसको पेड़ को काट के गिरा देते हो तो यूकलिप्टस से पुनः जो है उसके चारों तरफ ब्रांचेस निकल आती हैं और फिर वो पेड़ का साइज ले लेती है। दैट इज़ वाई हियर द पोएट सेज दैट इफ़ यू डू नॉट हार्म इट, इट्स अगेन गेट्स इट्स ओन पोजिशन और अगेन इट्स गेट्स इज ओन शेप। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। अब आप देख सकते हो कि नाउ सी द थर्ड स्टैंजा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब यहाँ पोएट जो बता रहा है कि जैसे आपने पेड़ काट दिया, फिर भी वो पेड़ आप नुकसान नहीं, उस पेड़ को आप नुकसान नहीं पहुँचा पाए। अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ दो तो पुनः उसमें से ब्रांचेज आ जाएंगे, उसमें से तने निकल आएंगे और वो तने जो हैं पेड़ का रूप धारण कर लेंगे। पोएट कहता है कि नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द ट्रीज कम्प्लीटली। इफ़ यू वांट टू destroy the tree completely, you have to root out, pulled out. Root is to be pulled out. You have to pulled out its root. You have to pulled out its root. यानी आपको क्या करना होगा, उसके जड़ को, उसको पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा। अगर आप पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ पाते हो, सॉइल से अलग उसको नहीं कर पाते हो, तब तक पेड़ जो है वो डेड नहीं करता, मरता नहीं है। तो दैट इज़ वाई हियर पोएट यूज दैट इफ़ यू वांट टू किल द ट्रीज, यू हैव टू पुल आउट द ट्री, यू हैव टू पुल आउट द ट्री विथ रूट्स।
out of the anchoring earth. Anchoring मतलब not just anchoring, the trees are held securely with the help of the roots in the earth. मतलब ये जो रूट होते हैं वो पेड़ को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, सिक्योरली उसको मजबूत बनाते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी कष्ट जो होती है मिट्टी में बिल्कुल मिल जाते हैं, वो बिल्कुल मिट्टी से जुड़े रहते हैं। और जब तक उसको आप मिट्टी सहित उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक वो पेड़ जो होते हैं पृथ्वी से अलग नहीं होते, वो डेड नहीं हो सकते। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज़ टू बी रोप। अगर आप चाहते हो कि आप पेड़ को जड़ से उखाड़ना है तो आपको मजबूत रस्सी बांधनी पड़ेगी। इट इज़ टू बी रोप टाइड, आपको मजबूत रस्सी बांधनी पड़ेगी। एंड पुल आउट, और उस तरह के जा कर के आपको खींचना पड़ेगा, पुल आउट करना पड़ेगा। किसको पुल आउट करना पड़ेगा? उस पेड़ को, उस वृक्ष को, तब जा कर के स्नैप्ड आउट, और उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तब जा कर के जो पेड़ है इट मे बी गेटिंग सम हार्म। यू अंडरस्टैंड इट वेल दैट trees is not easily going to be pulled out. If you want to destroy it, we have to pull out completely from the soil, and being separate from the earth, it may be, for that is not a easy work. You have to use a strong rope and tied it, then after you can pull it out the tree. Dear students, rest part of the poem I will explain in the next video with exercise 2. I hope you will like this video. Thanks to watch my video. Subscribe and share in your group.